Good morning to you all, my dear viewers, honorable onlookers, my subscribers. A very sweet good morning to all of you, my dear boys and girls, my dear students. As I told you, through this channel, PKT Sir channel, you will have some educational tips, and today's I would like to share some of the structures of tense. It will help you how to create sentences. As I told you, you will be able to speak English fluently if you watch my channel regularly. Your English will be stronger. You will start speaking English, and it will be very good for you. Boys and girls, English spoken is very important thing. One who speaks English, he is considered smart, modern, and in present time, in present system of education, is present process of education, mostly books are written only in English, and English is an international language. It will be spoken in any parts of the world, and as we are following the Western culture, people who are sophisticated, who are modern, who are well cultured, who are well civilized, they would like to speak English. And as I told you, great learned writers are belonging to foreign countries, and they wrote their books only in English. And if your English will be stronger, you will understand those principles, those books easily, those doctrines very easily. So always try to make your English stronger. Try to learn English by thoughts, by deeds, and by actions. So come to the point, I would like to share some structures of tense so that you will create sentences yourself and come perfect form, present perfect tense. As I told you, when the verb shows an action that the work has been finished completely in present time is known as present perfect tense. Understood? And हिंदी में पहचान के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या आ है, ए है, ई है इत्यादि चिन्हों में से कोई एक चिन्ह लगा रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तुम बाज़ार से सब्जी खरीद कर ला चुके हो, वह एक कलम खरीद चुका है, जिस वाक्य से पता चले कि कोई भी कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो उसे हम वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर्स सीखना पड़ता है, और अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है, आप ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इसके लिए आप कैसे यूज़ कीजिएगा, मैं एक आम खा चुका हूँ, आम खाने का काम पूर्ण हो चुका है, मैं एक आम खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन ए मैंगो। तुम एक पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन ए लेटर। वह एक कलम खरीद चुका है, ही हैज़ बाउट ए पेन। इन दिस वे यू कैन ट्रांसलेट ऑल such affirmative sentences into English. Negative. Negative. Subject plus have ya has plus not plus V3 plus object. This structure is belonging to present perfect negative form. If you have to use negative sentences into present perfect, then you have to use मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, I have not written a letter. तुमने एक कलम नहीं खरीदा है, you have not bought a pen. उसने ताजमहल नहीं देखा है, he has not seen the ताजमहल. इन तमाम सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को आप निगेटिव में यूज़ करें। इसके बाद आप इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों
मेयर व्यूअर्स, इसके लिए स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे हिंदी में? क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ? हैव आई रिटन ए लेटर? क्या तुम एक आम खा चुके हो? हैव यू ईटन ए मैंगो? क्या वह बाजार जा चुका है? हैज ही गॉन टू मार्केट? क्या वह ताजमहल देख चुका है? हैज ही सीन द ताजमहल? तमाम तरह के सेंटेंसेस आप इस तरह प्रकार से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए भी स्ट्रक्चर्स हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे क्या मैं एक बार आम नहीं खाया हूँ, या क्या मैं एक आम नहीं खा चुका हूँ? हैव आई नॉट ईटन ए मैंगो? क्या तुम एक पत्र नहीं लिखे हो, या क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो? हैव यू नॉट रिटन ए लेटर? क्या वह बाजार नहीं जा चुका है? क्या वह ताजमहल नहीं देख चुका है? हैज ही नॉट सीन द ताजमहल? ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव। और लास्ट में दो फार्मूला और बताऊंगा WH क्वेश्चन के लिए। जब क्या, क्यों, कैसे से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, इसके लिए आप फार्मूला है WH क्वेश्चन प्लस हैव या हैज प्लस V3, WH क्वेश्चन प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक पत्र किसने लिखा है? यह पत्र किसने लिखा है? आम किसने खाया है? यह आम किसने खाया है? तो ये आम खाने का, पत्र लिखने का काम यहाँ भी पूरा हुआ है। हु हैज रिटन दिस लेटर? हु हैज रिटन दिस मैंगो? मतलब कोई खाया हुआ आम आपने देखा तो आप पूछ सकते हैं आम खाने का काम तो किसी के द्वारा हो चुका है, तो आप कह सकते हैं ना यह आम किसने खाया है? हु हैज रिटन दिस मैंगो? तो इस प्रकार से वह ताजमहल क्यों देख चुका है? व्हाई हैज ही सीन द ताजमहल? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। उसने एक कलम क्यों खरीदी है? व्हाई हैज ही बाउट ए पेन? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। और मैं अंत में बताना चाहूँगा, WH क्वेश्चन में निगेटिव भी होते हैं कि उसने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया है? व्हाई हैज ही नॉट हैव हिज ब्रेकफास्ट टिल नाउ? वह एक कलम क्यों नहीं खरीद चुका है? व्हाई हैज ही नॉट बाउट ए पेन? वह सुबह में वह एक रोटी क्यों खा चुका है? क्यों नहीं खा चुका है? क्यों नहीं खाया है? उसने अभी तक एक रोटी क्यों नहीं खाया है? तो व्हाई हैज ही नॉट ईटन ए ब्रेड टिल नाउ आप बोल सकते हैं। तो धन्यवाद बहुत। हमारा 2RM का मोबाइल है, मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। थैंक यू वेरी मच।